Question states, design a gearbox for a 6 output speed for a 6 output speeds with following specification. With following specifications. So write one below another. Number one, the output speeds are, the output speed is 160 RPM minimum. The output speed is 160 RPM minimum, and standard value of geometric progression is, is 5. That is 5 and 5 you write. This way you write. So camera off again. This way you write 5. I will explain you what do you mean by this. Previously we have seen for phi, to calculate phi, there is one formula, that is n max upon n min raised to 1 upon z minus 1. But now in this question the standard value of geometric progression is given to you. Please complete the question. Point number 2. The motor shaft speed is 1440 RPM. So this is all about the question that is given to us. What the question says we will see. Design a gearbox for a 6 output speeds with following specification. मतलब हमको एक gearbox डिजाइन करना है. The gearbox will have a single input and there should be 6 output speeds, and the output speed, एक output speed हमको दी हुई है, that is the minimum one, that is 160 RPM, and considering the standard value of geometric progression, that is phi, we have to calculate all the different 6 speeds in the very first step. And one more point is given, that is the motor shaft speed is 1440 RPM. That means the input shaft speed is 1440 RPM. अगर सपोज आपको ये इनपुट शाफ्ट स्पीड को कम या ज्यादा करना है तो गियर बॉक्स के, देखिए ऐसा हमारा गियर बॉक्स होता था, which we have studied in the previous semester. We have studied 2-stage gearbox और 1-stage gearbox. प्रीवियस सेमेस्टर में हमने 2-stage gearbox या 1-stage gearbox यूज किया है. तो अगर 2-stage gearbox है आपका, if you are designing 2-stage gearbox, तो 2-stage gearbox में आपके नंबर ऑफ शाफ्ट जो होते हैं वो 3 होते हैं. You have number of shaft as 3, 1, 2 and 3. There are 3 shafts.
So this will be your shaft which will be connected with the motor, right? This will be the shaft which will be connected with the motor. These shafts will be linked to one another through pair of gears, and this will go to the application, right? So now in this case, we don't know what are the number of stages, how many shafts are there, but just to make you aware, I am showing you what this motor shaft speed actually means. ये मोटर जो यहाँ पर लगी हुई है इसकी स्पीड 1440 आरपीएम है, बट यहाँ पर वो बता रहा है आउटपुट स्पीड. यहाँ पर जो आपको आउटपुट स्पीड मिलने वाली है, यहाँ पर आपको आउटपुट स्पीड्स मिलेंगी, वो आपको 6 है, 6 आउटपुट स्पीड्स है. तो आपकी मर्जी है यहाँ से इनपुट कितना प्रोवाइड करना है, बट फिर वो सारे गियर के रिडक्शन से आपको यहाँ पर 6 आउटपुट निकालना है. ठीक है, तो आप अपनी मोटर की स्पीड जो इनपुट पर है उसको रिड्यूस भी कर सकते हो. कैसे करेंगे? मोटर को डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड मोटर को यहाँ पर रखेंगे और मोटर के जो शाफ्ट पे यहाँ पर स्पीड है 1440 है यहाँ पर, और अगर सपोज आपको यहाँ पर इनपुट है ना 160 देना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बेल्ट ड्राइव लगा सकते हैं इन दोनों के कनेक्शन के बीच में. यू कैन यूज बेल्ट ड्राइव. यहाँ पर आप बेल्ट ड्राइव यूज कर सकते हैं, बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव और एनी अदर मीन्स जहां से आप स्पीड कम कर सकते हो उसकी. तो मोटर आपकी यहाँ पे 1440, आपको इनपुट 160 चाहिए, तो आप बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव यूज करो, यहाँ पर आपको स्पीड 160 मिलने लगेंगी फिर. ठीक है, तो अब तक हम क्या करते थे, यहाँ पर डायरेक्ट मोटर माउंट करते थे. इंस्टेड अभी मोटर डायरेक्ट माउंट नहीं करेंगे हम लोग, और मोटर से दूसरे अरेंजमेंट से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, किसी को इसमें डाउट है कुछ? हाँ सर, बेल्ट और चेन यूज करने से डायरेक्ट इतनी स्पीड होगी कम, 1440 से डायरेक्ट 160? वो एग्जांपल दिया मैंने. सपोज इफ यू वांट 160 वी विल डू दिस वे, ऐसा बताया मैंने आपको. अच्छा ओके. वी वोंट गो फॉर 160. वी आल्सो नो इतना कम करना पॉसिबल नहीं है. तो जस्ट एंड फॉर ए एग्जांपल, बिकॉज अभी हमारे पास सिर्फ एक ही स्पीड है यहाँ पर डिस्प्ले होने के लिए, इसलिए मैंने उसी को कंसिडर कर लिया. यहाँ पर हम लोग 6 आउटपुट स्पीड निकालेंगे, उसमें से कोई जो पॉसिबल वैल्यू है वो यहाँ पर देंगे. पहले फर्स्ट स्टेप में जब कैलकुलेट करेंगे ना 6 स्पीड्स, उसमें से कोई एक स्पीड को यहाँ पर इनपुट बनाएंगे जो पॉसिबली इजीली ये 2 ड्राइव के मीन से कन्वर्ट हो सके. आया समझ में? हाँ सर, ओके ओके, अंडरस्टूड. just write what are the given values, then we will go on for the design. Sir. So mention what is given to you and then we'll move on. So we have given minimum output speed should be 160 RPM, right? And the motor speed is 1440 RPM. We'll see how to convert this. कैसे उसको convert करना है देखेंगे. Then you have number of stages. Number of stages is denoted by capital Z. Number of stages is denoted by capital Z. ठीक है, capital Z है आपका 6. Then you have the value of standard geometric progression, GP. GP is given to you as 5. इसको अभी इसमें से phi की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. Now see how to get the value of phi. एक तो उसका फॉर्मूला था जो हम लोग पहले देख चुके थे ऑलरेडी. एक जो पहले फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हम लोग देखे ना, phi का एक फॉर्मूला है. phi का फॉर्मूला क्या है? n max डिवाइड बाय n min रेज टू 1/z - 1. ये फॉर्मूले से आप कर सकते हो. बट अब जो है ना, हमारे पास n max नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ n max what he has given us is the value of standard geometric progression. Now how to calculate phi? See carefully now. What do we mean by phi or something? See, this value can be phi
और 540, इसके और बहुत सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज है। स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या क्या है देख लो आप, 540 है, 520 है, 510 है, 55 है, 510/3 है, ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू है। इट डजेंट मैटर टू अस कि इसने कौन सी प्रोवाइड किया है, whatever is provided, from that we will get the value of phi. So how to calculate that? It is actually nothing but fifth root of 10. इसको ऐसे रीड करना है. So you will get the value of phi. Fifth root of 10. Whatever the value will be, that root of 10 you have to take. अगर ये 40 होता तो हम लोग 40th root of 10 लेते. 20 होता 20th root of 10 लेते हम लोग. 10 होता 10th root of 10 लेते. Now it is 5 root of 10. So you can read that as nth root of 10. Is geometric progression is given somewhat like this. So this is phi base of n. This way you have to use the formula to convert the given geometric standard progression into a value of phi. So now tell me what is the answer you are getting? Fifth root of 10. 1.5848. 1.5848. And use 4 digits after decimal so as to get the answers correctly. Getting how to calculate the value of standard geometric progression ratio from standard value of GP. ठीक है, तो ये ऐसा है, fifth root of 10, 10/3 root of 10, 20/3 root of 10, और कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आपको दी हुई हो सकती है, उसके हिसाब से हमको काम करना है. ठीक है, so this is all about what is given to us. Now we will move towards the solution and progress with the steps which we have written that day. Step number 1 we have written as calculation of speed steps. Calculation of speed steps. Yes. So tell me, if you are using geometric progression, how to calculate speeds? बताइए. Yes. N1 is All are N there? minimum, N2 is N1 into phi, N3 is N2 into phi. Okay, N1 is N minimum, that is given to us as 160 RPM, and then N2 will be N1 into phi, and so on. Do it. करिए. N2 into phi. The value of phi is 1548. So this way you have to calculate the speed step based on the number of output speed that is required to be calculated. So what are the answers you are getting for N2, N3, N4? N2 253.57. To round off to a next higher one or to a next lower one? 253.57. Yes. 254 मतलब. ठीक है, चलिए जैसा है वैसा लिख ले. पर क्या है, अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो इसको आगे आपको यूज करना है और उसके हिसाब से फिर राउंड ऑफ करते चलना है.
अभी सर मैंने तो डेसिमल में ही सारे निकाल दिए। हाँ, क्या है वो, इसके आगे वाला क्या है? 401.85। तो 402 ले लेते हैं। उसके आगे 636.86। देन नेक्स्ट 1009.29। 1009, ठीक है। 1599.53। अब 1600। 1600, परफेक्ट। 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। So all are getting approximately these values. Yes, sir. Mila, all are getting right. There are सर Yes, sir. okay. Okay. So we'll move on to the next step. What is the next step? If anyone can tell me. सर बोलिए। सर आप जो बोल रहे थे ना कि उसको बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव से रिड्यूस करके फिर इनपुट देंगे, तो अगर डायरेक्ट 1440 का ही इनपुट दिया और फिर गियर से रिड्यूस किए तो? गियर बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में रिडक्शन के लिए। अच्छा। वो लास्ट स्टेप में मैं आपको सब डिटेल में बताता हूँ। We'll go on in steps, and finally when we'll be constructing the gearbox का एक लेआउट आपको बनाना है लास्ट स्टेप में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। Now moving on to the next step, please tell me what we have to do in next step, step number 2. calculate number of stages and number of shaft in the gearbox assembly. Okay, we need to calculate number of stages, how many stages are there in your gearbox, and number of shafts. So these two are very related to each other, but see carefully what you have to do to get the number of stages and number of shafts. See, Z is given to us, that is 6. This step basically involves the use of Z. Z क्या है? Z क्या दिया हुआ था हमको? Number of output speed. Number of output speed कितनी चाहिए वो आपका Z है. So using this Z, you have to calculate number of stages. Write the number of output speed in the multiple of 2. So 2 you have to write first. 2 times 3 is 6. Correct? 2 times 3 is 6. So this is done. So the number of elements that are in multiplication is your number of stages. Number of elements in multiplication मतलब यहाँ पर जितने एलिमेंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज यहाँ पर 12 होता इन केस, तो दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर। तो कितने एलिमेंट हुए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स। तो इसके नंबर ऑफ स्टेजेस हो जाएंगे 3। यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 2। देयरफॉर योर नंबर ऑफ स्टेजेस इज 2। आया समझ में? Therefore your number of stages is 2. The element in multiplication will give you number of stages. Getting the point? And for number of shafts, you have one formula, number of stages plus 1. So that is 3. Number of stages plus 1.
that is 3. Do anyone have any doubt in this? यहाँ पर जो भी आपका नंबर ऑफ आउटपुट स्पीड बोला हुआ है 4, 6, 8, मोस्टली 4, 6, 8, 9, 12, mostly most probable output speeds for our design are these 5 values. So for 4 your number of stages will be कितने बताइए? How much your number of stages will be for 4? 2. 6 also 2. What about 8? 3. 3. What about 9? 2. 2. What about 12? 3. 3. So that means in the syllabus we have to either design a 2-stage gearbox or maximum up to 3-stage gearbox, not more than that. ठीक है? But this is a basic thing which you can use every now and then for any number of stages, any number of output speed and calculate. The basic thing is it should be a multiple of 2 or 3. It should be a multiple of 2 or 3, not more than 3. ठीक है? Only 2 and 3 should appear in the multiplication of the output speeds. So very clear? This is very clear? So we'll move on to the next step. So step number 3. Can anyone tell me what we have to do in step number 3? Calculate number of gear pair. Using Structural diagram. calculate. Yes, number of gear pairs using structural diagram, or you can write in the bracket, it is also known as ray diagram. Sometimes there is confusion between many of the students that sir, it is said to use ray diagram, then what to do? So ray diagram or structural diagram, they are one and the same. There is no more difference between both of them. Okay, so again you have to use this formula, the one which we have written, that we have to use and convert that formula into a structural formula. Okay, so in this step there are few more sub steps. Number 1 is you have to make structural formula. Now see how to make structural formula. See, if you are only physically present and mentally absent, you won't be able to get what I am telling you, because this is all logical things. It doesn't require any PhD or such kind of PhD data book to get the formula. So be present mentally as well over here. So see carefully, and it is very interesting how to make structural formulas. Now see, we have the multiplication of 6 as 2 and 3. 2 and 3 we have, right? So how to convert this into a structural formula? See, we have to replace the places of element here and there, and then we need to make structural formula. So there are 2 elements. So what I can do is I can replace the position of element. I can write 2 here, 3 here. I can write 3 here, 2 here. Now since there are 2 elements, इसकी probability भी 2 है, इसकी probability भी 2 है. Probability मतलब क्या कर सकते हो आप? You can use this 2 in stage 1. You can use this 3 in stage 2. 2 stage है ना हमारा, हमको पता चल गया. ये 2 और 3 क्या है? This 2 and 3 are nothing but number of gear pairs. ठीक है? तभी जो हमारा जो डायग्राम हमने पीछे बनाए थे ना, फिर से एक बार आपको बना के बताता हूँ. ये आपका सपोज गियर बॉक्स है, लाइन डायग्राम ऑफ ए गियर बॉक्स. वी नो वी हैव टू मेक 2-stage gearbox. So 2-stage gearbox, there are 3 shafts: shaft 1, shaft 2, shaft 3. Input shaft, output shaft, intermediate shaft, right?
तो अभी क्या करना है, अभी आपने लिखे हो 2 और 3, मतलब यहां पर 2 गियर्स यूज करने हैं, यहां पर 2 गियर्स यूज करने हैं यहां पर, और सेकेंड वाले में, सेकेंड स्टेज में 3 गियर यूज करने हैं। इसका ये मतलब है नंबर ऑफ गियर पेयर्स 2, यहां पर 2 गियर पेयर यूज करने हैं। एक गियर पेयर ऐसा हो गया, उसके बाजू में एक और गियर पेयर ऐसा हो गया, 2 gear pairs in stage 1. Then in stage 2 you have to use 3 gear pairs. ये हो गया आपके 3 gear pairs. This is only line diagram I am showing you. ये एक gear pair है, 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 ये एक gear pair. तो two gear pairs, 3 gear pairs. Now see there are 2 gear pairs. तो हो सकता है ना कि मैं ये गियर पीछे यूज करूं, मतलब छोटा वाला आगे यूज करूं या छोटा वाला पीछे यूज करूं, वो भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। उसी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं कि मैं दोनों में से छोटा वाला आगे यूज करूं या छोटा वाला पीछे यूज करूं, वो भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहां पर आया समझ में? तो वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था मैं। वैसे आपका गियरबॉक्स अभी ऐसे है 2 और 3 के लिए। 3 और 2 के लिए क्या होगा? 3 और 2 के लिए 3 पैर यहां पर आ जाएंगे फर्स्ट स्टेज में और 2 पैर यहां पे चले जाएंगे 2 स्टेज में। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग गियर पेयर्स? उससे क्या होगा जरा बताइए मुझे कोई। इससे इनपुट और आउटपुट पे क्या फर्क होगा? ये सर जो मेरी डिफरेंट input है, स्पीड अचीव कर सर सकते हैं। स्पीड ज्यादा मिलेगा ना, 6 स्पीड। यस, जो हमको 6 स्पीड अचीव करना है ना आउटपुट पे, 6 स्पीड जो हमको आउटपुट पे अचीव करना है ना, तो मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करके यहाँ पर 6 स्पीड निकालने की कोशिश करूंगा। इनपुट मेरा एक ही होगा, ये कॉम्बिनेशन से एक स्पीड मिलेंगी, ये कॉम्बिनेशन से दूसरी स्पीड मिलेंगी, ये कॉम्बिनेशन से तीसरी स्पीड मिलेंगी। मतलब ये फर्स्ट गियर पैर और यहाँ का फर्स्ट गियर पैर से एक स्पीड मिलेंगी, यहाँ का फर्स्ट गियर पैर यहाँ के सेकेंड गियर पैर से एक स्पीड मिलेंगी, यहाँ का फर्स्ट गियर पैर यहाँ का थर्ड गियर पैर एक स्पीड मिलेंगी। कितनी हो गई? 3 स्पीड। यहाँ का सेकेंड गियर पैर यहाँ का फर्स्ट गियर पैर एक स्पीड मिलेंगी, यहाँ का सेकेंड गियर पैर यहाँ का सेकेंड गियर पैर एक स्पीड मिलेंगी, यहाँ का सेकेंड गियर पैर यहाँ का थर्ड गियर पैर एक स्पीड मिलेंगी। कितनी स्पीड हो गई? 6 स्पीड हो गई। और कोई प्रोबेबिलिटी है? और कोई कुछ प्रोबेबिलिटी बता सकता है तो बताइए, या बराबर है? वी आर मूविंग करेक्टली, ठीक है? सो दिस वे वी कैन अचीव 6 different speed using a single input. Still we are not decided which input to be used, but we are decided that what output we will get. We will get 6 different outputs using this combination. So this way your combinations are. Now just what one which the smaller one is to be used first or the bigger one is to be used first, this probability we will decide. So now how to decide the probability? These are 2 elements. So once again you copy it. If there would have been 3 elements, we would have written it 3 times. 2 है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 3 होती यहाँ पर तो 3 बार लिखते, यहाँ पर भी 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 3 होती 3 बार लिखते, ठीक है? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मेरे 4 बनेंगे। नाउ सी देयर इज नो डिफरेंस, कुछ तो फर्क करना पड़ेगा ना उसको। सो वी विल यूज द प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। नाउ लिसन केयरफुली हाउ टू यूज इट। सारों के आगे मैंने कुछ जगह रखे हैं, तो वहां पर आपको ब्रैकेट बनाने हैं प्रोबेबिलिटी के नंबर्स वहां पर डालने के लिए। आई विल यूज 2 गियर पेयर्स, द स्मॉलर वन फर्स्ट। ये कॉम्बिनेशन की बात चल रही है अभी, कैसे कॉम्बिनेशन यूज होगा, ठीक है? या ये कॉम्बिनेशन वगैरह ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए रखो। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको क्या करना है बस उतना याद रखो। फाइनली ये कॉम्बिनेशन आपको लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है? सो आई विल यूज 2 in the first stage and 3 in the second stage. 2 gear pairs in the first stage and 3 in the second stage. But now यहाँ पर हमको सेकेंड स्टेज का 2 नहीं लिखना है। क्या लिखना है पता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पर लिखना है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मुझे 6 होना चाहिए। in every structural
wherever I will end, जहां पर मैं एंड करूंगा मेरा प्रोबेबिलिटी डायग्राम और मेरा फॉर्मूला जहां पर मैं एंड करूंगा वहां का आउटपुट मेरा नंबर ऑफ आउटपुट स्पीड्स होने चाहिए। यहां पर मैंने एंड किया अभी। अब मैंने 2 को यहां पर फर्स्ट यूज किया था ना, अभी मैं 3 को फर्स्ट यूज करता हूं। आई विल यूज 3 पेयर ऑन द फर्स्ट स्टेज। सो 3 1 is 3, आई विल राइट 3 ओवर हियर। जब मुझे आगे जाने की जगह नहीं होती है, आई विल गो टू द फर्स्ट एलिमेंट। when I can't go ahead, I will go back at the very first element, right? So now I have ended here, so this will give me 6, right? 2 3s is 6. Same way I will do here. 3 1s are 3, I will write 3 over here. This will again give me 6, right? I have used 3 in the first stage, I will use 2 in the second stage. 2 1s is 2, and this will give me 6. Getting how to write the structural formula. These are our permutation combination based formula which we have to use to make structural formula. And using the structural formula, we will make structural diagram or the ray diagram. Are you all clear what we are doing? How to make structural formula? आगे समझ में? यस सर, वो डायग्राम वगैरह अभी बनाना नहीं है ना, ये स्टेप में खाली उतना ही नहीं, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन। दिस डायग्राम वी विल डायरेक्टली ड्रॉ इन द लास्ट स्टेप, gearbox layout. So this 4 are the structural formulas which we have got. Using the structural formula, one by one we will make different structural diagram. So let us name the formulas. Number 1, number 2, 3, 4. So now number 2, sub-step number 2 in step number 3 is to make structural diagram. To make the structural diagram. Now see, don't use any pencil or scale, directly go for a freehand diagram. Now see how to make a structural diagram. Again I am telling you, please be mentally present over here. ठीक है? For a structural diagram, you should know how many stages are there, how many shafts are there, and what is the structural formula you are using. So we are using the first structural formula, that is 2 1 and 3 2. Just write this. 2 1 3 2 is your structural formula. ठीक है? So using 2 1 and 3 2, you have to make your structural diagram. So how to use? There will be few vertical lines. There will be few vertical lines, and there will be few horizontal lines. So your vertical lines will be your number of shafts. Vertical lines will be number of shaft. So how many number of shafts are there? 3. So you have to draw 3 vertical lines. Draw 3 vertical lines. And how many speeds are there? ये समझ गया, 3 वर्टिकल लाइन आपको बनानी है। नंबर ऑफ शाफ्ट जितने हैं उतने वर्टिकल लाइंस बनानी है आपको। अभी आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होंगी? जितनी नंबर ऑफ आउटपुट स्पीड्स है। नंबर ऑफ आउटपुट स्पीड्स विल गिव यू हॉरिजॉन्टल लाइन। गेटिंग? वर्टिकल लाइंस, नंबर ऑफ शाफ्ट लिख देता हूं मैं। वर्टिकल लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शाफ्ट्स, जितने शाफ्ट्स होंगे उतने वर्टिकल लाइंस बनाना है। हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट स्पीड, नंबर ऑफ आउटपुट स्पीड। सो वी हैव 3 शाफ्ट, तो मैंने बना दिया शाफ्ट नंबर 1, शाफ्ट नंबर 2, शाफ्ट नंबर 3। 2 शाफ्ट के बीच में एक स्टेज होता है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज योर सेकेंड स्टेज।
ठीक है, अभी आपको बनाने हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, नंबर ऑफ आउटपुट स्पीड। सो ये आपकी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यू हैव 6 हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तो आपका स्टेज नंबर 1 है और ये आपका स्टेज नंबर 2 है। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, ये दिखाने की जरूरत नहीं, 6 लाइन सिर्फ आपको बनाना है, एक बॉक्स कंप्लीट कर लेना है। डू एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? बिकॉज इसके आगे जो करूंगा ना वो एकदम न्यू है, ये लाइंस है सिर्फ। डू यू हैव एनी डाउट what lines we have created? No doubt? Can we move on? Yes? Yes. Okay, then we will move on. Now see, nowhere I have written the speed or nowhere I have told you where the speed will be. These are all number of shafts, number of output speed. See, we calculate speed from bottom. So this is your N1, this is your N2, this is your N3, this is your N4, N5, and this last one is your N6. ये पॉइंट पर आपको अभी स्पीड्स मिलेंगे आपके, जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करे हैं ना। So this is N1, N2, N3, N4, N5, N6. Cleared about this? This way we get the speed, not this way. These are number of output speed, only numbers. These are your actual value of speed. So from here you have to provide the input, from here you will get the output. यहाँ से इनपुट प्रोवाइड करना है आपको शाफ्ट 1 से, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा शाफ्ट 3 से। यह है शाफ्ट 1, शाफ्ट 1, शाफ्ट 2, शाफ्ट 3। इनपुट शाफ्ट 1 से प्रोवाइड करना है, शाफ्ट 3 से आपको आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, नाउ सी हाउ टू डू इट। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस 2 1 एंड 3 2 एंड व्हाई इट इज नेम्ड एज स्ट्रक्चरल डायग्राम और रे डायग्राम? व्हाई इट इज नेम्ड एज रे डायग्राम? स्ट्रक्चरल डायग्राम इसीलिए बिकॉज हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूज करके बना रहे हैं। रे डायग्राम इसीलिए बिकॉज इस बॉक्स में भी हम लोग रेस से स्पीड को कनेक्ट करेंगे। सो नाउ इट इज अप टू अस, अभी हमारे पर है कि ये इनपुट स्पीड हम कितनी सेलेक्ट कर रहे हैं। हर एक की इनपुट स्पीड अलग हो सकती है। कोई इनपुट स्पीड 1 ले सकता है, कोई 2 ले सकता है, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कुछ भी इनपुट स्पीड आप ले सकते हो। मोटर स्पीड हमको दी है 1440 आरपीएम, बाकी सारी स्पीड हमने कैलकुलेट किए हैं। तो ऐसी स्पीड आप सेलेक्ट करो इनपुट के लिए जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को चेन ड्राइव या बेल्ट ड्राइव से रिड्यूस होके मिल सके। तो मतलब आप इंटरमीडिएट स्पीड लो या उससे ज्यादा वाली लो, मोस्टली यू गो फॉर इंटरमीडिएट स्पीड। तो मतलब हम लोग सपोज इसको इनपुट सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। सो विच इज द वैल्यू हियर एज इनपुट? N3 कितना है आपका? 402 है आपका N3। So can you get 402 by using a belt drive with the motor having 1440 rpm as the input? मिल सकता है ना? ज्यादा रिडक्शन नहीं है, 3 टाइम्स रिडक्शन है। ठीक है, तो या तो आप ये भी ले सकते थे N4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग N4 लेके करो, कुछ लोग N3 लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, फॉर नाउ पहला डायग्राम है इसलिए सब साथ में करेंगे। सो वी विल यूज दिस एज द इनपुट स्पीड। नाउ वी हैव डिसाइडेड our input speed is 402 rpm and our output speed will vary between N1 to N6. So this is the point where we are starting. Now how to you read this 2-1? 2-1 मतलब क्या? 2-1 का मतलब क्या? अभी स्ट्रक्चरल डायग्राम में 2 means there will be, this 2 means there will be 2 rays.
2 means there will be 2 rays. इस पॉइंट से आपको 2 रे पास करने हैं. 2 means you have to pass 2 rays from this starting point. Getting it? Getting it? So we'll pass 2 rays. Ray number 1 यहां से पास हो रही है, एंड रे नंबर 2 आप ऊपर या नीचे ड्रॉ कर सकते हो. अभी एक चीज आपको ध्यान रखना है, डोंट पास योर रे इन बिटवीन दिस पॉइंट्स. ये जो 6 स्पीड्स है ना हमारी, ये 6 पॉइंट है हमारे. तो ये जो आप 2 रे पास करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये इसी पॉइंट पर एंड करना है हमको. स्टार्ट इस पॉइंट से करना है, एंड किसी एक पॉइंट पे करना है. नाउ माय क्वेश्चन इज, मुझे 2 रे पास करना था, तो मैं एक रे इधर और एक रे इधर भी पास कर सकता था ना, या नहीं? 2 रे है, कहीं भी भेज दूं मैं. ये डाउट है किसी को? सर स्पीड दो बहुत रे थे। ज्यादा वेरी हो जाएगा ना. अच्छा ऐसा. और कुछ? एनीवन? अब्दुल्ला? सर Someone? शाफ्ट है ना बीच में. बेटा हम लोग तो गियर पैर यूज कर रहे हैं ना, हाँ, तो कोई भी 2 स्पीड ले सकते हैं. पर मैंने ये 2 ही क्यों लिया? कुछ रीजन होगा ना उसका. ठीक रिडक्शन है चलो सुनो, व्हाट इज द रीजन? नहीं सुनिए, रीजन सुनिए. 2 मैंने बताया 2 और 1 यूज करना है मेरे को, बराबर. 2 और 1 यूज करना है, तो 2 और 1 यूज करना है. तो 2 मैंने बोल दिया आपको नंबर ऑफ रेज है, तो ये 1 भी कुछ है ना, ये 1 भी कुछ है ना. ये 1 बोलता है डिफरेंस ऑफ स्पीड. देयर शुड बी ओनली 1 डिफरेंस ऑफ स्पीड. इसी का फंक्शन, इसी का यूज है वो. 2 रे पास करना है, बट द डिफरेंस इन स्पीड शुड बी ओनली 1 डिफरेंस इन स्पीड. अगर ये बोलता मुझे 2 डिफरेंस इन स्पीड, तो मैं एक यहां पर एक यहां पर रखता. देयर विल बी 2 डिफरेंस इन स्पीड. आया समझ में अभी? गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. So this is the way you have to read the structural diagram. 2 means there should be 2 rays, and the difference between 2 rays should be 1 speed. The difference between 2 rays should be only 1 speed, 1 speed difference. It can be either N3, N2, N4, N3, N5, N6, N1. मैं ये फर्स्ट रे को इधर पास करके सेकेंड रे इधर भी रख सकता था, बट we will read in optimum diagram. We will proceed in optimum speed. डायरेक्टली जंप नहीं करना है, फ्लक्चुएट नहीं करना है ज्यादा स्पीड को. सेंटर से पास होते रहो आप, अल्टीमेटली यहां पर आने के बाद सारे स्पीड आपको मिलेंगे. गेटिंग? नाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस 2 पॉइंट and make 3 rays having a difference of speed as 2. Now see, I have 2 points. दोनों पॉइंट से 3-3 रेस बनानी है. दोनों पॉइंट से जो भी पॉइंट पे आप पहुंच रहे हो ना, हर उस पॉइंट पर आगे का एलिमेंट यूज करना है. तो अभी ये यूज करना है आपको. ये हो गया, ये यूज कर लिया हम लोग ने. 2 1 यूज कर लिया. नाउ 3 2. हर पॉइंट से 3 रेस पास करनी है. हर 2 रे के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए. सो इस पॉइंट से हमको 3 रे पास करनी है. तो जब भी आप लास्ट लाइन को अप्रोच करते हो ना, तो जो मैक्सिमम ऊपर वाला पॉइंट है उसको डायरेक्ट कॉर्नर पे जोड़ देना है. डायरेक्ट ऊपर जोड़ना है. यहां पर अभी आपको हर पॉइंट पे एक एक रे आनी चाहिए. अगर आपकी हर पॉइंट पे एक एक रे आ जाती है तो आपका डायग्राम सही है, वरना आपका डायग्राम गलत है. तो मैंने इस पॉइंट से एक रे पास कर दिया. कितनी पास करनी है? 3 पास करनी है. ठीक है, तो 1 पास कर दिया, बट 2 के बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए. तो दूसरी रे मेरी यहां पर आएंगी. दिस इज माई सेकेंड रे. बट 2 ही रे हुई अभी, एक और रे पास करनी है. दिस इज माई थर्ड रे. देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के भी बीच का डिफरेंस 2 है. 2 डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन रेस. एंड हाउ मेनी रेस? 3 रेस. सो अगेन यहां से ये पॉइंट बचा हुआ है, कनेक्ट करो. 2 डिफरेंस लेके दूसरी रे कनेक्ट करो. 2 डिफरेंस लेके दूसरी रे कनेक्ट करो. Now ultimately you check
Do you have any ray at this point? Yes, 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 yes. Done. Your diagram, your answer is correct. आया समझ में? हर पॉइंट से 3 रे पास करनी थी, हर 2 रे के बीच में डिफरेंस 2 होना चाहिए. तो फर्स्ट रे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, 2 के डिफरेंस के बाद एक और कनेक्ट किया, 2 के डिफरेंस बाद और एक कनेक्ट किया. इस पॉइंट से 3 रे हो गई, 3 rays are there. Now going to this point, directly what I said, go to the top speed. यहाँ पर top speed कितनी है अभी? N5, because N6 already I connected. So N5 is there. After 2 speed there will be 1 speed. After 2 speed there will be 1 speed. And at every point there should be only single ray. हर पॉइंट पे एक ही रे आनी चाहिए, बिकॉज आपका आउटपुट स्पीड जो है वो एक ही हो सकता है, एक बार एक ही हो सकता है, 2 बार सेम नहीं हो सकता है. हर स्पीड चाहिए हमको. आया समझ में? गेटिंग द पॉइंट? या ऑफिस से डायग्राम एक बार बना के बताऊं? बोले जल्दी. समझ गया सर. समझे सर? यस सर, समझ गया. सर. अच्छा एक काम कीजिए अभी. फॉर बी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बी, you make this diagram. For structural formula B, you make this diagram. Then I will make the diagram. Then we will compare दोनों का सही है या नहीं. ठीक है? For B you go. B के लिए बनाइए आप, फिर C और D बनाएंगे. First go for B. Once you are done, let me know. Done sir. All are done? So 2 1 आपने बनाए होंगे. पहले मैं बताया आपको 2 1. Moving on, this goes here. Difference of 2, it comes here. It comes here. So this was the first one. Now the second one. It reads 2 3. 2 rays. Difference between 2 rays must be 3. So starting from point 4, as we have already started point 4, there should be 2 rays. Difference 3 होना चाहिए उनका. ठीक है? तो कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो आप. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ से स्टार्ट कर लिए, एक रे ड्रॉ कर दी आपने, 2 ही बनाना है, 3 का डिफरेंस 1 2 3. See, it doesn't matter if you joined here, anywhere you can join. Finally, सब स्पीड आपको लास्ट शाफ्ट पे मिलनी चाहिए.
दैट्स इट। मैंने यहाँ पे 2 3 ऐसे ज्वाइन कर लिया, दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। अब हर पॉइंट से 3 रे पास करना है, बट डिफरेंस एक ही होना चाहिए, 3 रे। फर्स्ट रे टू द टॉप पॉइंट, 1 डिफरेंस, सेकेंड रे, थर्ड रे, 3 रे आ गई। नाउ दिस पॉइंट इज लेफ्ट, ज्वाइंड हियर, ज्वाइंड हियर, ज्वाइंड हियर, सारे पॉइंट्स हो गए। एट द एंड फाइनली all speeds at the last shaft should be connected. So check with this. Check with this. Now go for. हाँ बोलिए। सर मैंने 2 3 पे मतलब फर्स्ट वाला जो रे था वो मैंने 6 N6 पे कनेक्ट हो गया और वहां से मैंने फिर 3 नेक्स्ट 3 रेज मार्क किया, तो वो चलेगा कि वो रॉन्ग जाएगा फिर? कहां से कनेक्ट किया आपने? यहाँ से? हाँ सर, 4 से N6 पे कनेक्ट किया फर्स्ट रे के लिए, क्योंकि 3 का डिफरेंस ठीक है। बोला था ना। हाँ, और फिर वहां से मैंने तो 3 पे कनेक्ट होना चाहिए फिर। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट किए तो 1 2 3 का डिफरेंस यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, दोनों के बीच का 3 का डिफरेंस होना चाहिए, मैंने इंडिविजुअल 3 का डिफरेंस ले लिया। हाँ हाँ, नहीं, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रे एंड सेकेंड रे मस्ट बी 3। यस। और किसी को कुछ डाउट है? नाउ सी दिस इज सिंपलेस्ट वन। इसके बाद जब 12 स्पीड का करेंगे ना तो स्ट्रक्चरल डायग्राम बड़ा हो जाएगा, डायग्राम्स भी बड़े हो जाएंगे। तो अगर अभी डाउट है तो अभी पूछिए आप। सर पैटर्न कोई भी हो सकता है ना, बस लास्ट में हर पॉइंट पे एक स्पीड आनी चाहिए। यस यस, आप कहीं भी कुछ भी ड्रॉ करो, आप यहां से चालू करो, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी चालू करो, लास्ट में यहां पर हर पॉइंट पे एक रे आनी चाहिए, हर पॉइंट पे सिर्फ एक रे। 2 रे अगर एक ही पॉइंट पे आ रही है तो रॉन्ग, एक पॉइंट लेफ्ट हो जा रहा है तो भी रॉन्ग। As per our structural formula, at the final point there should be all 6 speeds. वो आपका पैटर्न के हिसाब से फिर आपका ऑप्टिमम डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑप्टिमम फाइंड करना है, फिजिबल फाइंड करना है, वो सब आगे की चीज है। ठीक है, गो फॉर 3 1 2 3 3 2 2 1। Okay, I will start from this point. I have to pass 3 rays. हर 2 रे के बीच का डिफरेंस एक होना चाहिए। सो लेट अस पास द फर्स्ट रे हियर। एक डिफरेंस मतलब एक नीचे और एक ऊपर, या आप एक नीचे के और एक नीचे भी बना सकते हो, बट व्हाट आई सेड, गो फ्रॉम सेंटर एंड इंक्रीजिंग। सेंटर से इंक्रीजिंग डायरेक्शन में चलिए, डायरेक्ट एकदम मैक्सिमम पे भी नहीं जाना है, डायरेक्ट एकदम मिनिमम पे भी नहीं आना है। इफ यू डू सो ना, then your size of gear will be increasing, because reduction ratio is increasing, then diameter of gear module will increase. ठीक है, now 2 3 2 rays and difference between 2 rays is 3. Connect directly at the maximum point, 1 2 3 यहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। 2 rays difference is 3, then 2 rays difference is 3, then again 2 rays difference is 3. So finally all points are connected. Finally all points are connected. If you refer any book, then you can see they have started from here or here. Anything can happen, but mostly try to start it from the center so as to linearly increase the speed. ठीक है, अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो 3 2 3 रेस, डिफरेंस शुड बी 2 3। सबसे पहले क्या करना है पता है क्या? सेंटर में सीधी एक लाइन बनाना है, आगे पीछे कुछ भी नहीं देखना है। एक रे तो वैसी हो जाती है आपकी, हर जगह आपको 2 या 3 रे तो पास ही करना है, एक सेंटर में पास करना है डायरेक्ट सीधी स्ट्रेट। उसके बाद देखना है आगे कितनी और बनाना है, 3 रे बनाना है। तो एक तो मैं ऑलरेडी बना दिया हूं, उसके ऊपर 2 डिफरेंस,
नीचे का 2 डिफरेंस, खत्म। 3 रे हो गई मेरी, 3 रेस डिफरेंस इज 2, 3 रेस 2 डिफरेंस, 2 डिफरेंस। नाउ गोइंग ऑन, 2 रेस डिफरेंस इज 1। यहां से तो आपको हर बार मैक्सिमम पे ही कनेक्ट करना है। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1, मतलब ये इधर आया, यहां से हर पॉइंट से मैक्सिमम पे जाने की कोशिश करना है। ये डिफरेंस कितना है, 1, यहां से यहां डिफरेंस 1, 6 स्पीड आ गई आपको, 1 2 3 4 5 6, एज इजी एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल नहीं हो सकता ये। डन? Do still anyone have any doubt? Still anyone have any doubt? Done? Now we will go for feasibility check. Actually, you have to do in the diagram only the feasibility check. But फिलहाल डायग्राम सिखाना था, इसलिए मैं आपको feasibility check नहीं बताया। How to do the feasibility check I will tell you. ठीक है? How to do the feasibility check. In the diagram only you have to do. For feasibility check, you have one formula. ये डायग्राम फिजिबल है या नहीं है, मतलब ये गियर बॉक्स जो हम इससे बनाएंगे वो फिजिबल है या नहीं है, वो चेक करना है। तो फॉर फिजिबिलिटी चेक देयर इज वन फॉर्मूला, phi raised to n should be less than equal to 8। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। यहाँ पर n मत लिखिए, m लिखिए। n ऑलरेडी हम लोग ने यूज किए है किसी चीज के लिए। What m we will check? M is difference between two maximum rays in a stage. Drum. इधर नीचे। M is, लिख लीजिए, M is difference between, sorry, you write maximum difference between two rays from a point. Maximum difference between two rays from a point. बस ये, तो जितने डायग्राम रहेंगे ना, हर डायग्राम के लिए आपको फिजिबिलिटी चेक करना है। सो A is 2 1 3 2, इसका M कितना आ रहा है देख लेना है, लिखना है फिजिबल है या नहीं है। B 2 3 3 1, इसका M कितना है, फिजिबल है या नहीं। 3 1 2 3, M कितना है, फिजिबल है या नहीं। 3 2 2 1, M कितना है, फिजिबल है या नहीं, देख लेंगे। So what is the explanation of M? Maximum difference between two rays from a point. Maximum difference दो रे के बीच में जो एक पॉइंट से निकल रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हर पॉइंट के लिए चेक करना है आपको। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट कितने हैं, 1 2 3। We are not talking about the ending point. We are only talking about the starting point. So in every diagram there are minimum 3 starting points और 4 स्टार्टिंग पॉइंट्स। डिपेंड करता है, ये डायग्राम पे डिपेंड करता है कि कितने स्टार्टिंग पॉइंट है। सो स्टार्टिंग पॉइंट डजंट मीन सिर्फ शाफ्ट 1 पे देखना है, शाफ्ट 2 पर भी हो सकता है, शाफ्ट 3 पर देखना ही नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी ऑन शाफ्ट 1 और शाफ्ट 2। शाफ्ट 3 इज योर एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट पे नहीं देखना है। सो शाफ्ट 1 पर या शाफ्ट 2 पर। Go for shaft 1, shaft 2, shaft 1, shaft 2. Don't go for shaft 3. So see, on the shaft 1, you have 1 point. What is the maximum difference? Maximum difference 1 का है. Difference is 1, मतलब M is 1 over here. तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, M 1 है यहाँ पर। और यहाँ पर ये पॉइंट से मैक्सिमम डिफरेंस देखना है 2 रे का। So this is 1 ray, this is 1 extreme rays के बीच का डिफरेंस देखना है। Extreme rays, maximum difference between two rays from a point। कितना maximum difference? तो ये
एक रे है, ये एक रे, डिफरेंस 1 2 3 4। तो यहाँ पर m आपका 4 है। आया समझ में कैसे लेना है? गेटिंग द पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट देख लो आप, उसके एक्सट्रीम रेज देखो, ये एक्सट्रीम रेज है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। ये पॉइंट है, ये एक्सट्रीम रेज है, डिफरेंस कितना है? 2 है। डू एनीवन हैव एनी डाउट? नहीं तो यहां पर m कितना है मुझे बताइए अभी। डू एनीवन हैव एनी डाउट? अगर है तो पूछिए, आगे जाके तकलीफ होंगी। है किसी को डाउट? Yes. 2 और 3 आएगा ना इधर। Can we move on? Yes. Okay. So here, how much will be the value of m? 1 2. This point, these two rays, extreme rays. कितना difference है? 2. Now this point, these two rays. 3. Correct. Right. What about the last one? This point, 4. these are the two extreme rays. Difference 1 2 3 4. This point, any one point, कोई भी एक पॉइंट आप कंसीडर कर लो, एनी वन पॉइंट यू हैव टू कंसीडर। मैं तो बोले सर ने यही पॉइंट लिए, ये पॉइंट नहीं लिए, आप ये पॉइंट का भी देखोगे तो m2 ही आएगा। आप यू सी दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, योर आंसर विल बी 4 ओनली। नाउ सी दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, योर आंसर विल बी 1। Any point you see, that doesn't matter. आगे समझ में? अच्छा, अभी Yes. इसमें से कौन सा m यूज करना है यहाँ पे फॉर्मूला में डालने के लिए? Maximum. ग्रेटर वाला मैक्सिमम वाला यूज करना है। मिनिमम वाला तो वैसे भी सेफ हो जाएगा अगर मैक्सिमम वाला सेफ है तो। नाउ चेक, यहाँ पर आगे लिखना है फिजिबल है क्या नहीं, आंसर नहीं लिखना है, जस्ट चेक, मेक ए चेक। 5:m is less than 8 or not? Less than 8. फिजिबल है तो फिजिबल लिखना है। all are having less than 8? Yes, sir. So this is feasible. This is also feasible. This is also feasible. This is also feasible. All are feasible. Done? Still, do anyone have any doubt in this? सर Get it एग्जाम में cleared now. अगर सर एग्जाम में हर एक पूरा मतलब जितने भी स्ट्रक्चर रहेंगे फॉर्मूलाज सबके लिए एक हर करना है ड्रॉ, कि अगर एक अगर फिजिबल हो गया तो फिर Yes. नहीं करेंगे तो अच्छा चलेगा नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये फिजिबिलिटी चेक मैंने कब किया? ड्रॉ करने के बाद। ड्रॉ करने के बाद फिजिबिलिटी चेक होती है। अभी देखो, ये तो सिर्फ 6 का था, हमने एक पेज पे लिखे थे ना कितने कितने स्टेजेस बनने वाले हैं। देखो, ये 2 है तो उसका फॉर्मूला इसी होगा, ये 2 है तो इसका फॉर्मूला इसी होगा, ये 3 है तो इसके डायग्राम कितने बनेंगे पता है क्या? 3 जो है ना उसके डायग्राम बनते हैं 12। मतलब जो 12 स्टेज का सम करेंगे, इसके बाद हम लोग एक सम करेंगे। इधर बताता हूं मैं आपको। 12 is 2 into 2 into 3, तो ये एक फॉर्मूला है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 है। इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो 2 3 2 बनेगा, फिर से इसकी प्रोबेबिलिटी 3 होंगी, 3 प्रोबेबिलिटी 3 प्रोबेबिलिटी 3 2 2 3 प्रोबेबिलिटी। मतलब डायग्राम बनेंगे आपके
9 डायग्राम, 3 6 9, तो 9 के 9 आपको बनाने पड़ेंगे। कुछ केसेस में ओके सर। वो आपको बोल देता है कि आइदर यूज दिस और यूज दिस और यूज दिस, तो वैसा बोलने पे फिर 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। बट इफ नथिंग इज सेट, सब डायग्राम बना के चेक करना है कितने फिजिबल है। इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू चेक विच वन इज ऑप्टिमम आउट ऑफ द फिजिबल वन। ठीक है, गेटिंग द आंसर? यस सर, यस सर। अभी चेक करना है कि ऑप्टिमम कितने हैं, जितने फिजिबल है उसमें से ऑप्टिमम कितने हैं। चलो आगे। ओके सर। यस सर। So, your point number 3, sub step number 3, we will go for optimum selection of optimum structural diagram or ray diagram. Selection of optimum structural diagram. ठीक है, for this you make a table of 5 row 5 column। एक टेबल बना लीजिए 5 रो 5 कॉलम का। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्ट्रक्चरल डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम, देन जस्ट राइट शाफ्ट 1, शाफ्ट 2, शाफ्ट 3, ये हेड्स है। Summation of all values, these are the heads for your rows। स्ट्रक्चरल डायग्राम तो ABCD भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग ने उसको ऑलरेडी नाम दिए हुए ना। स्ट्रक्चरल डायग्राम A, स्ट्रक्चरल डायग्राम B, स्ट्रक्चरल डायग्राम C, स्ट्रक्चरल डायग्राम D। बेटर गो फॉर फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख सकते हो आप 2 1 3 2, वैसा 2 1 जो भी है ABCD या स्ट्रक्चर का फॉर्मूला। Now see, all are done with this? ठीक है। Now what are the values that you have to input in here? क्या values input करना है? So for this again you have to see the diagram। See shaft 1, shaft 2, shaft 3, shaft 3 shaft है ना, इसलिए we are written only 3 shaft। ये आपका डायग्राम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ A B C D। फॉर A स्पीड कौन से शाफ्ट पर है वो वैल्यू यहां पर लिखना है। सॉरी, शाफ्ट 1 पर A के लिए वेयर द नंबर ऑफ स्पीड इज यू हैव टू राइट दैट नंबर ओवर हियर। तो ये जो लेफ्ट साइड में हमने नंबर लिखे ना, अभी इसका यूज यहां पर होगा। ठीक है, सो शाफ्ट 1 इज दिस, 4th point you have started, so write 4 over here। for structural diagram A, for structural diagram A we are talking about, on the shaft 1 at what point it is intersecting? At 4 it is intersecting, the extreme point we are talking about। तो इधर तो एक ही पॉइंट है शाफ्ट 1 पे, शाफ्ट 2 पर 2 पॉइंट्स है, बट एक्सट्रीम पॉइंट की बात चल रही है। एक्सट्रीम मतलब जो नीचे है, एक्सट्रीम मतलब जो बड़ा है, तो यहां पर भी 4। शाफ्ट 3 एक्सट्रीम पॉइंट कितना है? 6 है। आया समझ में? गेटिंग हाउ टू गेट द वैल्यूज। नाउ सी फॉर B, शाफ्ट 1 4, शाफ्ट 2 5, शाफ्ट 3 6, 4 5 6। एक्सट्रीम पॉइंट्स देखना है कहां पर वो शाफ्ट पर इंटरसेक्ट कर रहा है आपका। शाफ्ट 1 4, शाफ्ट 2
5. Shaft 3, 6. Getting this? 4, 6 and 6. Extreme points 4, 5, 6, 4, 6, 6. Done? Do anyone have any doubt? The extreme point where your speed is on the shaft, that you have to just write over here. तो अभी जैसा किसी का डाउट था कि मैंने अगर यहाँ से चालू किया या यहाँ से, आप कहाँ से भी चालू करो, इसकी बुनियाद पे अभी आपका ऑप्टिमम स्ट्रक्चरल डायग्राम चेंज हो जाएगा. Whichever is having minimum sum will be your optimum structural diagram, and that will be used further for drawing the layout. ठीक है? Now add and get the sum of this. Add and get the sum of this. So this will be 14, 15, 15, 16. (14, 15, 15 and 16). So whichever is having the minimum sum will be your optimum structural diagram. So which one is the optimum structural diagram? A. So this is your optimum structural diagram. 2, 1, 3, 2. That is A is optimum structural diagram. सर Yes. सर मेरे को दो ऑप्टिमम आ रहे, ए और बी दोनों. Anyone you can use. Use the first one. अगर इनकेस ये चारों वैल्यू हमको सेम आती थी तो आप कोई भी एक, बेटर गो फॉर द फर्स्ट वन. हो सकता है, पॉसिबल है कि चारों भी आ सके, क्योंकि हम लोग स्टार्ट अगर अलग अलग जगह से करेंगे ना तो मे बी पॉसिबल वैसा हो जाए कहीं. सो नाउ यूजिंग दिस ऑप्टिमम स्ट्रक्चरल डायग्राम we have to go for the final diagram, which you can say as ray diagram or optimum structural diagram or optimum ray diagram. In that you have to show your motor speed as well as your input speed, and also show how you are converting the speeds. तो कुछ नहीं है, जो 2132 है उसको फिर से एक बार बनाना है, 2132 को रिपीट बनाना है, बट उसमें इनपुट स्पीड को भी शो करना पड़ेगा. सो वही हमारे 3 लाइंस है. सो दिस आर योर vertical lines and horizontal lines. स्पीड है तो मोटर की स्पीड की भी एक हमने लाइन बनाया है. हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं. Just complete the terminologies. Everything should be very clear in this diagram. Shaft 1, shaft 2, shaft 3. This is stage 1. This is stage 2. These are the different speed. You can also write the values of speed here, so that the diagram becomes
easy to read. ओके, सेम 2132 आपको कनेक्ट करना है. सो यहां से हमने स्टार्ट किए थे, बस ये वाली को यहां पर कनेक्ट करना है. We are starting from this as the input speed. Here you have to write reducing motor speed to input speed using बेल्ट ड्राइव. अभी उसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है. क्या वो बेल्ट ड्राइव का बेल्ट का थिकनेस कितना होना चाहिए, कितनी पुली होनी चाहिए, कितना स्पीड आप रिड्यूस कर रहे हो, दैट डजंट मैटर. बस ये एक मोटर स्पीड थी आपकी, वहां से आप इनपुट स्पीड पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. बस उसका रीजन क्या है, कैसे करोगे, वो लिख के यहाँ पे छोड़ना है बस. सो 2 1 2 rays difference of 1, 3 rays difference of 2, we have got the optimum ray diagram. This you can say